Good morning, students. Now, in this lecture, we have to discuss numericals based on relations. So, let's start with question number one. So, here, first question is a relation R defined on set A and B. So, relation R defined from set A and set B. So, relation R from set A to set B is given. Relation R is defined on set A and set B. It's R from set A to set B, where given set A is 2 3 4 5, 2 3 4 5, and elements of set B are 3 6 7 and 10. Two sets are given, which is defined as this relation. What is the definition of this relation? This relation R is defined as ordered pair xy. Ordered pair xy belongs to R, which implies x divides y. So here we have to express this relation R as a set of order pair. We have to express this relation R as a set of ordered pair. First part of the question, and second part of the question, we have to determine range. And domain of this relation R. Done. So relation R from set A to set B is given. Both sets are defined. Definition of relation is given. We have to write down all the ordered pair, and then we have to find the domain and range of this relation R. Clear, students? So here, this is the definition of our relation. Done. So what is the relation R? Is from set A to set B. Here we have to write the order pair XY. है ना, सारी order pair. कौन सी order pair XY? What is the condition? X divides Y. Both X and Y must belong to this set A and set B. है ना, first element A से आएगा, second element B से आएगा. This relation R will be, है ना, this relation R will be subset or equal to Cartesian cross product A cross B. So here our order pair XY belongs to this relation R. So X will belong to this set A, and X will be from set A, and second element Y will be set B. Order pair लिखनी हमें XY, उसमें से फर्स्ट एलिमेंट कहाँ से आएगा? सेट A से, है ना, ये सारे X होंगे, और सेकंड एलिमेंट इज Y कहाँ से आएगा? B से, ये सारे Y की वैल्यू होगी, और दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन सेटिस्फाई होना चाहिए? ये वाला, X divides Y. First element divides second element. So let's try to write that relations, all possible order pairs. So relation R is ordered pair X आपको लेना है यहाँ से A में से. So 2 X divides Y कहाँ से लेना है? B में से. तो सारे नंबर लिखने हैं जो 2 से डिविजिबल हो. So here 3 cannot be divided by this 2. तो 2 3 order pair नहीं आएगी. Here 2 6, 2 divides 6. Done. 2 belongs to set A. This 6 belongs to set B. This order pair XY belongs to this relation R. दोनों के बीच में रिलेशन सेट हो गया. कौन सा? X divides Y. First term divides second term. First component divides second component. 2 6. उसके बाद 2 10. 2 divides 10. उसके बाद 3 को कंसिडर करें. So here 3 divides 3. 3 divides 3. 3 divides 6. है ना? 3 कहाँ से आ रहा है? 3 belongs to set A, और ये जो सेकंड एलिमेंट कहाँ से आ रहा है? फ्रॉम सेट बी. उसके बाद 3 के साथ और कोई नंबर डिविजिबल नहीं है. देन इफ यू कंसीडर 4 कोई नंबर को डिवाइड करता है सेट बी में से? 3 6 7 10. नो. 5, यस, 5 डिवाइड्स not a 3, not 6, not 7, but 10. So 5 10. These are the possible order pair in relation R. This is the answer of this first part of the question, writing this relation R as the order pair. Clear? Now second part of the question, you have to find range and domain of relation. So we have already discussed definition of range. पहले डोमेन फाइंड कर देते हैं ना, उसके बाद रेंज. So what is domain? Domain of our relation R is nothing but the set of all the first element of all ordered pair present in relation. Relation के अंदर जितनी भी ordered pair है,
वो ऑर्डर पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका एक सेट हमें क्या देगा, डोमेन देगा, डोमेन ऑफ रिलेशन। सो हियर फर्स्ट एलिमेंट्स आर 2 2 3 3 5, रिपीट नहीं करना है। सो इट्स अ 2 3 5, दिस इज द डोमेन ऑफ आवर रिलेशन आर। एंड रेंज, व्हाट इज रेंज? Range of relation R is nothing but the set of all the elements of set of all the second elements, है ना, set of all the second elements present in relation R, set of all the second elements of ordered pair present in a relation। तो ये जो second pair है, second element है उसका एक set, तो 6 10 3 6 10, तो 3 6 10, 3 6 10 is the range of our relation। डन। उसके बाद सपोज कोडोमेन फाइंड करना है। कोडोमेन क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन अगर सपोज आपको कोडोमेन पूछ लिया तो कोडोमेन क्या होगा? कोडोमेन इज नथिंग बट द सेकंड सेट ऑन विच और रिलेशन इज डिफाइंड। रिलेशन आर इज फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, है ना, सेट बी पर डिफाइन किया हुआ है। तो हियर कोडोमेन इज नथिंग बट दिस सेट बी, उसके सारे एलिमेंट्स हमारा कोडोमेन होगा। तो इट्स 3 6 7 10, 3 6 7 3 6 7 10, डन। दिस इज अवर कोडोमेन। और एक और रिलेशन होता है रेंज, है ना, और रेंज विल बी इक्वल टू और सबसेट ऑफ कोडोमेन, है ना। रेंज इज ऑलवेज सबसेट और इक्वल टू कोडोमेन। तो देखो ये हमारी रेंज है 3 6 10 3 6 10, so range is subset of codomain। Clear students? So this is your first question। Second question, second numerical, here determine domain and range। Here we have to find domain and range, domain and range of the function, domain and range of the relation R is ordered pair xy, ordered pair xy such that x belongs to natural number, first element of order pair belongs to natural number, and second element of order pair is also belongs to natural number, and x plus y, sum of both the element must be equal to 10। So this is our relation which is defined in set builder form, है ना। We have studied that any relation R can be represented by three ways। It can be in set builder form, it can be in roster form, or it can be in mapping diagram, arrow diagram। So here our relation R is given in set builder form। So here we have to find the domain and range। So to find the domain and range of any relation, first we require its order pair। That means we require roster form of this relation R, है ना। पहले तो roster form निकालेंगे, order pair मिल जाएगी, तो उसके फर्स्ट एलिमेंट जो होंगे वो हमारा डोमेन होगा, और जो सेकंड एलिमेंट होंगे वो हमारा सारा वो जो रिलेशन है उसकी रेंज होगी। डन। तो इसको निकालें। सो व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? रिक्वायरमेंट इज दिस वन, दोनों एलिमेंट का एडिशन 10 होना चाहिए और दोनों एलिमेंट नेचुरल नंबर होने चाहिए। सो हियर ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स इन रिलेशन आर आर। नेचुरल नंबर स्टार्ट करें, सपोज नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। इफ x इज 1 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? y मस्ट बी 9, है ना, तभी जाके 1 + 9 10 होगा। सेकंड पॉसिबल ऑर्डर पेयर x 2 ले ले तो y 8 होना चाहिए, तो 2 + 8 10 होगा। डन। सो दिस लाइकवाइज 3 7 4 6 5 5 6 4 7 3 8 2 9 1, है ना। 10 0 नहीं आएगा, 0 नेचुरल नंबर में नहीं होता है। So these are the possible order pair in our relation। Now we have to find the domain। So what is the domain? Domain of relation R। So domain of relation R is nothing but the set of all the first element of all the order pair, set of first element of all the order pairs which are present in our relation। So in our relation total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 order pairs are there। जितनी भी order pair है उसके first element, है ना, जो फर्स्ट एलिमेंट का एक सेट होगा उसको हम बोलेंगे डोमेन ऑफ आवर रिलेशन। तो सारे एलिमेंट कहां से कहां तक आए? 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
ये सारे एलिमेंट हमारे हो गए डोमेन. नाउ व्हाट इज द रेंज? Range of relation. Range of relation R is nothing but the set of all the second element, है ना? Set of second element of all the order pairs present in our relation. तो ये सारे second element है. देखो order pair के सारे second element का एक set है ना, वो होता है हमारा range. That is the range of range, है ना, second element. So elements are 9, 8, 7, 9, 8, 7, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Domain and range are equal. अगर कोडोमेन पूछ लिया होता तो क्या होता? कोडोमेन इज नथिंग बट दी, जहां पर रिलेशन डिफाइन किया हो, यहाँ पर रिलेशन कौन से सेट को डिफाइन किया वो नहीं दिया है, तो यहाँ पर कोडोमेन हम लिख नहीं पाएंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, तो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड डोमेन and range of this given function. Okay friends, now question number 3. Question number 3, third numerical. Here set A is given. Set A is given. Elements of set A are 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. These are the elements of set A. Define relation R from set A to set A, है ना? Relation R from set A to set A. Set A to set A. Relation on set A is given. Definition of relation R is ordered pair XY such that Y will be X minus 1 and both X and Y belong to set A. This is the definition of relation. So here first part of the question is depict this relation using arrow diagram. Depict this relation using arrow diagram. तो हमें ये रिलेशन का एरो डायग्राम ड्रॉ करना है एंड देन वी हैव टू राइट डाउन डोमेन कोडोमेन, है ना? कोडोमेन कब मिलेगा हमें? जब ये रिलेशन कहां से कहां तक डिफाइन है वो मिलेगा, वो दिया होगा तब. प्रीवियस केस में नहीं था तो हम कोडोमेन नहीं लिख पाएंगे, है ना? यहाँ पर दिया हुआ है तो यहाँ पर हम डोमेन कोडोमेन एंड रेंज इसकी फाइंड कर पाएंगे. So here you have to find domain, range and codomain of this function. पहले तो क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि करना क्या है, डन, उसके बाद आंसर निकलेगा. So here relation R on set A is given. That means relation R from set A to set A is given. Elements of this set A are 1, 2, 3, 4, 5. That means ये जो एलिमेंट है ना X and Y दोनों सेट A से, तो हमें ऐसी एड ऑर्डर पे लिखनी होंगी जिसके अंदर फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड एलिमेंट दोनों यहाँ से होंगे, इसके अलावा कुछ नहीं होगा और ये कंडीशन फुलफिल भी होनी चाहिए. तो हियर फर्स्ट वी हैव टू राइट द रिलेशन R. दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म. फर्स्ट वी हैव टू राइट अवर रिलेशन R इन रोस्टर फॉर्म. ऑर्डर पेयर चाहिए. सो हियर फर्स्ट ऑर्डर पेयर, सपोज इफ यू आर टेकिंग x इक्वल टू 1 फ्रॉम हियर, सो इफ x इज 1, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? 1 minus 1, y विल बी 0. तो y इज आल्सो बिलोंग टू सेट A, तो यहाँ पर 0 है, नहीं है तो हम x की वैल्यू 1 नहीं ले पाएंगे. उसके बाद x की दूसरी पॉसिबल वैल्यू 2 ले ले, तो पुट x इक्वल टू 2 और हियर, सो इट्स 2 minus 1, 1. क्या 1? y की 1 वैल्यू a में है, यस. सो फॉर x इक्वल टू 2 वी आर गेटिंग y इक्वल टू 1 एंड बोथ दिस x एंड y बिलोंग्स टू सेट A. सेट A के अंदर 1 and 2 दोनों है. डन. दिस इज फर्स्ट पॉसिबल ऑर्डर पेयर. देन इफ वी कंसीडर x इक्वल टू 3, y विल बी 2. बोथ बिलोंग्स टू सेट A. 2, 3, 4, 4, 3, 5, 4. उसके बाद हम 6 नहीं ले पाएंगे, x की वैल्यू 6 यहाँ पर नहीं है, तो सारी पॉसिबल ऑर्डर पेयर हो गई. डन. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, है ना, ये देखो, दिस इज द फर्स्ट मेथड बाय विच वी कैन रिप्रेजेंट द रिलेशन, सेट बिल्डर फॉर्म. देन वी हैव डिराइव्ड सेकंड मेथड बाय विच आवर रिलेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड, दैट इज रोस्टर फॉर्म. नाउ वी हैव टू राइट थर्ड मेथड, दैट इज एरो डायग्राम. तो सबको पता है एरो डायग्राम कैसे होता है. So here relation R is defined from set A to set A. So this is relation R defined from set A to set A. Set A के एलिमेंट का सेट A के एलिमेंट के साथ रिलेशन डिफाइन किया हुआ है. So elements of set A are 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Again elements of set A are 1, 2, 3, 4, 5. Done. What is the relation? Relation is 2 का रिलेशन 1 के साथ. So 2 की इमेज 1,
3 का रिलेशन 2 के साथ 3 की इमेज 2, 4 का रिलेशन 3 के साथ 4 की इमेज 3, 5 का रिलेशन 4 के साथ तो 5 की इमेज 4, है ना। एलिमेंट 2 की इमेज 1 है, 3 की एलिमेंट 3 की इमेज 2, 4 की इमेज 3, 5 की इमेज 4। रिवर्स, है ना। 1 इज प्री इमेज ऑफ 2, 2 इज प्री इमेज ऑफ 3, 3 is pre-image of 4, 4 is pre-image of 5. Done. This is arrow diagram. This is arrow diagram. तो ये ड्रॉ करके दिखाना था। उसके बाद you to find the domain. So what is the domain? You have to write the domain of relation. Domain of relation R. So domain is set of first element of all the order pairs present in relation. तो देखो ये सारे एलिमेंट सारी ऑर्डर पेयर प्रेजेंट है ना। यहाँ से देखो तो 1 नहीं है, 2 3 4 एंड 5 की सिर्फ इमेज मिल रही है। तो ये 2 3 4 5 जो है ना वो हमारी क्या होगी, डोमेन होगी। तो दिस वन इज 2 3 4 5। तो डोमेन के अंदर 1 छूट रहा है। उसके बाद रेंज की बात करें, रेंज। सो रेंज ऑफ रिलेशन, तो रेंज ऑफ रिलेशन ऑर्डर पेयर से लिखना है तो सेकंड एलिमेंट लिखेंगे, है ना। सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर प्रेजेंट इन रिलेशन आर। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 हमारा डोमेन हो गया। 1 2 3 4 ये हमारा डोमेन हो गया। मैपिंग डायग्राम से देखना हो तो जो भी एलिमेंट है ना, जो भी एलिमेंट की कुछ ना कुछ इमेज की प्री इमेज है ना। 1 इज प्री इमेज ऑफ 2, 2 इज प्री इमेज ऑफ 3, 3 इज प्री इमेज ऑफ 4, 4 इज प्री इमेज ऑफ 5, 5 किसी भी एलिमेंट की प्री इमेज नहीं है। तो 5 हमारे रेंज में नहीं आएगा। रेंज में कोई क्या आएगा, 1 2 3 4। डन। इसके बाद कोडोमेन लिखना है। सो व्हाट इज द कोडोमेन? कोडोमेन ऑफ रिलेशन आर। तो कोडोमेन लिखने के लिए दिखाया है कि रिलेशन हमारा जो भी सेकंड सेट पर डिफाइन है, रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट ए। तो ये जो सेकंड सेट होता है ना उसको हम कोडोमेन बोलेंगे। और यहाँ पर मैपिंग में देखें तो ये जो सेकंड सेट होता है ना, ये वाला, ये पूरा सेट, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट है वो हमारे क्या होंगे, कोडोमेन। सो कोडोमेन इज 1 2 3 4 5. The set which consists of all these elements is nothing but the codomain of this relation R. Clear, students? So now I think it is clear to all how to find domain, codomain and range of given relation. Question number 4. Fourth question. So here you have to determine domain and range of relation. Determine domain and range of relation which is defined as R equal to ordered pair AB such that first element A belongs to natural number and A is less than 5, natural number less than 5, and B is equal to 4. B is equal to 4. So here relation R is given, है ना। ये सपोज 1 मार्क के लिए भी आएगा तो क्या करना है, ऑर्डर पेयर ए बी, ऑल ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग टू रिलेशन आर इफ दे सेटिस्फाइज द कंडीशन। क्या कंडीशन है, फर्स्ट एलिमेंट ए नेचुरल नंबर होना चाहिए, नेचुरल नंबर लेस देन 5 होना चाहिए और बी ऑलवेज कांस्टेंट 4 रहेगा। तो देखो फर्स्ट एलिमेंट नेचुरल नंबर की बात करें तो 1, सेकंड एलिमेंट ऑलवेज 4, दूसरा एलिमेंट 2 लेस देन 5 हो गया, है ना। दूसरी ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट तो ये 2 4 3 4 4 4। These are the possible order pairs in given relation R. इसकी डोमेन लिखना है, डोमेन। So what is the domain? Domain is nothing but the set of first element 1 2 3 4, 1 2 3 4। अभी सबको क्लियर हो गया है। So what is range? रेंज की बात करें तो रेंज के लिए सेकंड एलिमेंट वो तो फिक्स रखा हुआ है 4, तो 4। डन। यहाँ पर देखो कोडोमेन फाइंड कर पाएंगे, कोडोमेन। यहाँ पर कोडोमेन हम नहीं फाइंड कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि ये रिलेशन आर फ्रॉम विच सेट टू विच सेट इज गिवन दैट इज अननोन एंड हेंस दिस सेकंड सेट इज नॉट गिवन, हेंस वी कांट डिटरमाइन द डोमेन ऑफ दिस रिलेशन, है ना। इसके लिए सिर्फ हम डोमेन एंड रेंज ही निकाल पाएंगे, कोडोमेन नहीं मिलेगा। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, है ना, इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन तो क्या होता है इनवर्स रिलेशन? लेट अस नाउ से वन रिलेशन आर फ्रॉम
set A to set B is given, which is defined as relation R equal to ordered pair XY such that X belongs to set A and all Y belongs to set B, है ना? All X belongs to set A and all Y belongs to set B. This is order pair. So here inverse relation is given by inverse relation is represented by R inverse. R inverse होता है. So what is R inverse? R inverse is nothing but we will interchange the position of this all the order pair. That means it will be like this: yx, where every x belongs to set A, every y belongs to set B. डन. ये होता है हमारा इनवर्स रिलेशन. तो इनवर्स रिलेशन के अंदर क्या होता है, जो भी ऑर्डर पे रिलेशन में आएगी उसको आपको इंटरचेंज करना है. तो ये रिलेशन आर इनवर्स वो चेंज हो जाएगा फ्रॉम B to A. Done. R inverse. So inverse of relation R from set A to set B is nothing but the R inverse from B to A. So here, what is the domain of relation? Domain और कोडोमेन में क्या चेंज आएगा? So domain of relation R is nothing but the A, है ना? इसका डोमेन ये है रिलेशन R के लिए. So R inverse के डोमेन क्या होगा? B, और ये क्या होगा इसका कोडोमेन. So here domain of relation R is nothing but the codomain of R inverse. रिलेशन R का जो डोमेन होगा वो R इनवर्स का कोडोमेन हो जाएगा, और जो रिलेशन R का जो कोडोमेन है ना, कोडोमेन ऑफ रिलेशन R का कोडोमेन क्या होता है? सेकंड सेट ऑन विच रिलेशन इज डिफाइंड, तो B होता है. तो B R इनवर्स के लिए क्या होता है? डोमेन होता है. सो दिस इज नथिंग बट द डोमेन ऑफ रिलेशन R इनवर्स. डन. सो दिस इज द शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ इनवर्स रिलेशन. इसके बेस पर एक क्वेश्चन करते हैं. चलो. सो हियर व्हाट न्यूमेरिकल इज गिवन. क्वेश्चन नंबर 5th न्यूमेरिकल. सो हियर वन रिलेशन इज गिवन. फॉर दैट वी हैव टू फाइंड द इनवर्स रिलेशन. Find inverse relation in each of the case. Total 3 part of the questions are given. So first part, here relation R is given as 1 to, है ना? Relation is given in terms of roster form. So all the order pairs are given 1 2 1 3 2 3 2 3 3 2 3 2 and 5 6. Done. So all the order pairs are given. Now we have to write the inverse. So what is the inverse? तो यहाँ पर देखा हमने किसी भी इनवर्स का हमें किसी भी रिलेशन का हमें इनवर्स निकालना है, तो ऑर्डर पेयर को क्या कर देना है? जस्ट इंटरचेंज कर देना है. तो यहाँ पर जो भी ऑर्डर पेयर प्रेजेंट है उसको इंटरचेंज करना है. तो 1 2 का होगा 2 1, 1 3 का होगा 3 1, 2 3 का होगा 3 2, 3 2 का होगा 2 3, 5 6 का होगा 6 5. In short, domain and codomain will be interchanged in terms of inverse of relation. Now second part of this question. For the second part, we are given that relation R equal to ordered pair XY such that both X and Y belongs to natural number and X plus 2Y equal to 8, है ना? X plus 2Y equal to 8 होना चाहिए. ऐसी ऑर्डर पेयर हमने लेनी है, नेचुरल नंबर होने चाहिए. तो यहाँ पर देखो कुछ सिंप्लीफिकेशन करके रखना पड़ेगा आपको. सो हियर X plus 2Y equal to 8, तो इसको कैसे लिखेंगे? 2Y will be 8 minus X, so Y will be 8 minus X by 2. X की ऐसी वैल्यू कंसिडर करनी है, X है ना, एक नेचुरल नंबर ऐसा कैसे कंसिडर करना है जिससे हमारा Y भी नेचुरल नंबर आ जाए, क्योंकि ऑर्डर पेयर XY के अंदर X एंड Y दोनों नेचुरल नंबर है. तो इसकी हम ऑर्डर पेयर लिखने हैं, है ना? सेट ऑफ ऑल दी ऑर्डर पेयर रिलेशन R को लिखना है. सपोज इफ यू आर टेकिंग X इक्वल टू 1, नेचुरल नंबर 1 ले ले, तो 8 minus 1 7 होगा, 7/2 फ्रैक्शन में आंसर आएगा. तो Y हमारा फ्रैक्शन में आएगा, तो ऑर्डर पेयर में नहीं आएगा. तो X हमारी 1 पॉसिबल वैल्यू नहीं है. दूसरा नंबर ले ले. इफ यू आर टेकिंग X इक्वल टू 2, देखो X इक्वल टू 2 तो क्या होगा? 8 minus 2 6/2.
दैट इज 3, तो 3 हमारा नेचुरल नंबर, तो दोनों ऑर्डर पेयर है ना, ऑर्डर पेयर के दोनों एलिमेंट नेचुरल नंबर होने चाहिए, तो ये कंडीशन फुलफिल हो गई x इक्वल टू 2 के लिए। 3 के लिए नहीं होगा, 4 ले ले तो x इक्वल टू 4, 8 माइनस 4 4, तो ये 2 हो जाएगा। उसके बाद सपोज x इक्वल टू 6 ले लें तो y इक्वल टू 1 होगा, इसके अलावा कुछ भी ऑर्डर पेयर हमें ये रिलेशन के लिए नहीं मिलेगी। डन। तो रिलेशन R इज 2 3 4 2 6 1, तो अभी इसका इनवर्स मिलेगा R इनवर्स, तो दैट इज नथिंग बट दी 3 2 2 4 एंड 1 6, जितने भी ऑर्डर पेयर प्रेजेंट है उसको आपको इनवर्स कर देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड इनवर्स ऑफ एनी गिवन रिलेशन। चलो क्वेश्चन नंबर शायद 6 था हमारा। सो हियर सेट ए इज द सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, सेट ए इज द सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, so it's a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, set A is the set of first 10 natural number, relation R be the relation on set A, है ना, क्या दिया हुआ देखो, relation R on set A, तो इसका क्या मतलब हुआ, relation R on set A का मतलब हुआ relation R from set A to set A, है ना, set A के एलिमेंट का सेट एलिमेंट ऑफ सेट ए के साथ रिलेशन, है ना, एलिमेंट के सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है उसका खुद के साथ रिलेशन, उसको बोलेंगे रिलेशन आर ऑन सेट ए। सो दिस इज डिफाइंड एज रिलेशन डिफाइंड एज ऑर्डर पेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू रिलेशन विच इंप्लाइज, है ना, ये ऑर्डर पेयर रिलेशन में होगी विच डबल इंप्लाइज दैट एक्स प्लस 2y इक्वल टू 10। डन। So here we have to find R and R inverse, and also we have to find domain and range. Domain and range. Domain and range of both of these relation, है ना, relation R and inverse of relation. देखो, so here what is the meaning of this one? ये relation R कुछ हटके दिया हुआ है ना, तो जो नॉर्मल फॉर्म में होता है उसमें लिख देते हैं हम। सो व्हाट इज रिलेशन R? रिलेशन R इज नथिंग बट द ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर एक्स वाई, कंडीशन इज both x, relation R defined on set A, so both x and y belongs to set A and condition is x plus 2y equal to 10 होना चाहिए, है ना। लास्ट क्वेश्चन में क्या हुई कि सपोज x plus 2y equal to 10 गिवन है, so 2y will be 10 minus x, so y will be 10 minus x by 2, तो x and y दोनों सेट A के अंदर है और A के एलिमेंट हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 10 है, तो ऐसे एलिमेंट को कंसीडर करना है कि दोनों ऑर्डर पेयर हमारी रिलेशन R में प्रेजेंट हो। सपोज इफ यू आर टेकिंग x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 ले लो तो y की वैल्यू 4.5 आएगी जो सेट A के अंदर नहीं है, तो x की वो वैल्यू कंसीडर नहीं करेंगे। x की वैल्यू 2 ले ले तो 10 minus 2 8 by 2 तो 4 आएगा, सो दिस 2 and 4 बोथ बिलोंग टू द सेट A, है ना। सपोज इफ यू आर टेकिंग x इक्वल टू 3, तो 10 minus 3 7 by 2 3.5 नहीं है, तो x की 3 वैल्यू कंसीडर नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर 4 ले लें तो 10 minus 4 6 by 2 तो 3 आएगा, तो 4 and 3 दोनों सेट A के अंदर है। डन। सेम एज 6 ले ले तो आएगी वैल्यू 2, उसके बाद 8 ले ले x की वैल्यू 8 तो y आएगा 1, उसके बाद कोई भी पॉसिबल वैल्यू नहीं ले पाएंगे। सो दिस इज अवर रिलेशन R। डन, दिस इज रिलेशन R। सो हियर रिलेशन R इज 2 4 4 3 6 2 and 8 1, so what is R inverse? So our in R inverse is nothing but the all the order pairs, रिवर्स करके लिखेंगे, 2 4 का होगा 4 2 4 2, 4 3 का होगा 3 4, उसके बाद इसके बाद 6 2 का होगा 2 6 एंड 8 1 का होगा 1 8। दिस इज अवर R इनवर्स। डोमेन एंड रेंज निकालनी है, सो व्हाट इज domain of relation R? So domain of relation R is set of all the first element, so 2 4 6 8 2 4
6 8, तो 2 4 6 8 ये जो R इनवर्स है उसकी रेंज है, so that is nothing but the range of R inverse. So domain of R is nothing but the range of R inverse, and range of R है ना, रिलेशन R की रेंज निकाले. So what is range? Range is nothing but the set of all the elements of second element of order pair. So 4 3 2 1 4 3 2 1 ले ले, तो 4 3 2 1 नहीं है, कुछ नहीं है, ये क्या है? दिस इज नथिंग बट द डोमेन ऑफ, दिस इज नथिंग बट द डोमेन ऑफ R inverse. डन. तो ये हमें शो करना था. क्लियर स्टूडेंट्स? सो दिस आर द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन रिलेशंस.